So hello everyone, let us get started with our next question of our DP playlist. The next question is about the rod cutting problem. It's a very standard question. तो पढ़ते हैं यार. So given a rod of length n inches and an array of prices, the price of I denotes the value of the price of the length I. Determine the maximum value obtained by cutting up the rod and selling the pieces. ओके तो हम इसको छोटे एग्जांपल से समझते हैं यार. यहाँ पे दोनों एग्जांपल बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं. तो ओके. So let's say you have n equals to 4, that is the length of the rod you have given is as 4, and the price of the ith length of the rod would be 3, 5, 8 and 9, right? मतलब ये वन इंडेक्स से शुरू है, 1, 2, 3 and 4, ठीक है, and this is the price. तो मैं इसको कैसे कट कर सकता हूँ? लेंथ ऑफ रॉड 4 को I can cut it into 1 plus 1 plus 1 plus 1, right? इस तरह कट कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ? I can do 1 plus 3 or I can do 2 plus 2. What can I do? What I can do 0 plus 4, right? Any other possibility is possible? Yes. So 1 plus 1 I can take like this and I can do 1 plus 1 plus 2. Correct? Any other possibility? I don't think there is another possibility left. Okay, तो इसमें देखते हैं. अगर हमने इस प्राइस को उठाया तो यहाँ पे क्या होगा? 3 into 4, that will give you as 12. यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा? 1 plus 3 के लिए the cost associated with the 1 is 3 and the cost associated with the rod length 3 is 8. So 3 plus 8 will give you as 11. Similarly, 2 plus 2, that is the cost associated is 5 plus 5 will give you as 10. 0 plus 4, so the 0 is nothing but the 4. The cost associated here is 9, so that will give you as 9. Similarly, 1 plus 1 plus 2 will give you the cost associated as 3 plus 3 plus 5. That will give you as 5 plus 3, 8, 8 plus 3, 11. What is the maximum price here available in this all the possibilities? You can see 12, right? So 12 is our answer. 12 is our answer. ठीक है, तो let us verify this thing on the compiler as well. हम यहाँ पे एक input test case पास करते हैं यहाँ पे, right? 4 and then 5, 3. So we can clearly see 12 is the answer for this particular test case. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है यहाँ पर I guess. तो अब हम इससे मेथड 1 की पहले बात करते हैं. मेथड 1 क्या है? जैसे ही मैंने आपको ड्राइंग में क्या दिखाया, वी आर एज्यूमिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज. तो मेथड 1 वही है यार, assume or make all the possibilities. Assume all possibilities and track the maximum. And track the maximum answer, right? तो इसमें क्या होगा कि हम एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, इधर वी आर टेकिंग इट और इधर वी आर नॉट टेकिंग दैट एलिमेंट, राइट? करेक्ट है. तो हमारे पास क्या है? 3, 5, 8 and 9. So we have two choices, either to take it and do not take it. So we will write the code for, let's say, not taking, and then we will write the code of taking, and among them we need to find the maximum. So I will say return maximum of the not take command, not take code and the taking code. ठीक है, ओके. हमारे पास इसका पैरामीटर्स क्या होगा? लेट्स से वी हैव दिस मेन फंक्शन एंड लेट्स से वी बिल्ड अ हेल्पर फंक्शन, जहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक इंडेक्स, हम लेंथ ऑफ रॉड पास करेंगे और हम एरे पास करेंगे, राइट? तो एरे क्या है हमारे पास? 3, 5, 8 and 9, एंड देन वी विल पास द इंडेक्स. इंडेक्स इज नथिंग बट द रॉड ऑफ लेंथ जो हम इसमें हर बार कट करेंगे, मेन रॉड से अपने जो कट लगाएंगे हर बार, राइट? एक बार इसका वापस से ट्री देखते हैं, वहां से थिंक बातें क्लियर हो जाएंगे, राइट? तो अगर हम नॉट टेक वाला ब्रांच लेते हैं, देन वी टेक द टेक ऑफ द टेक ब्रांच, तो क्या होगा कि अगर हमने कुछ लिया ही नहीं है तो दिस 4 रिमेन्स एज इट इज 4 एंड द एरे विल रिमेन एज इट इज, राइट? एरे को हम यहाँ पे स्किप करते हैं, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट थर्ड पैरामीटर लिख रहा हूँ, राइट? हमने फर्स्ट एलिमेंट को इंडेक्स 0 को टेक नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे. देन अगेन व्हाट वी विल डू, the function of 4 comma 2 would be called, and then again function of 4 comma 3 would be called, and again function of 4 comma 4 would be called, right? And this is what the third parameter is, nothing but rod of length that I need to cut from this thing, right? And now as you can see कि यहाँ पे जो rod length of 4 और हमारे पास ट्रैक करते करते हैं हमारे थर्ड पैरामीटर हम भी 4 तक आ चुके हैं, राइट? तो डेट मीन्स कि हम कैसे कट करेंगे यार? इसको 4 करते हो 0 आ जाएगा, राइट? सो फॉर दिस केस जहाँ पर इंडेक्स +1 is greater than n, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि you do not have an option to move forward now, so return 0. So for this particular case I will say return 0. ठीक है, ओके. और इसका सूडो कोड किस तरह से दिखेगा यार? तो हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसमें हम 3 पैरामीटर्स पास किए थे, n, द प्राइस एरे एंड द इंडेक्स एरे, राइट? हमने बेस केस डिस्कस कर लिया कैसे होगा, एंड देन वे डिस्कस कि हम क्या करेंगे, हम एक नॉट टेक का स्टेटमेंट लिखेंगे यानी टेक का स्टेटमेंट लिखेंगे और उसमें जो मैक्सिमम होगा वो हमें रिटर्न करना होगा, राइट? क्योंकि वही हमारा आज के क्वेश्चन में. तो नॉट टेक का कोड कैसे चलेगा यार? क्योंकि हमारे पास जो है हमने कुछ टेक किया ही नहीं, हमने किसी भी इंडेक्स से प्राइस को उठाया नहीं, तो डायरेक्टली इंडेक्स +1 करके मूव कर जाएंगे.
बट टेक के समय क्या होगा कि सबसे पहले वी नीड टू इंक्लूड दैट प्राइस एंड देन वी हैव टू रिकव फॉर रॉड लेंथ। अब घटाना पड़ेगा हमें, राइट, जिस इंडेक्स को लिया, सिंस यहाँ पे वन बेस इंडेक्सिंग चल रहा है, राइट, so that is why, और array जो होता है वो जीरो बेस इंडेक्सिंग चल रहा है, that is why I have included -1 here and minus index -1, the price array remains as it is, and then यहाँ पर आप सोच सकते हो कि इंडेक्स प्लस वन क्यों नहीं किया यहाँ पे भैया यार। यहाँ पे इंडेक्स प्लस वन प्लस इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को वापस में चलो, ठीक है, ये आप थर्ड केस देखो जहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि द मैक्सिमम ऑब्टेन वैल्यू इज 24 बाय कटिंग रॉड इनटू 8 पीसेस। इन्होंने क्या किया है कि ये जो n इक्वल्स टू 8 है, ठीक है, और यहाँ पे ये फर्स्ट रॉड लेंथ का प्राइस है, ये सेकंड रॉड लेंथ, ये थर्ड रॉड लेंथ, तो इन्होंने इसको 3 पीस में बांट दिया है। तो मतलब हम यहाँ पे इन्फिनिट सप्लाई ले सकते हैं, राइट, ठीक है, मतलब एक ही रॉड को वी कैन चूज मल्टीपल टाइम्स, जैसे यहाँ पे मैंने किया था। यहाँ पे आप देखो मैंने 4 को बनाने के लिए 4 टाइम्स 1 उठा लिया था, दैट मीन्स दैट वी कैन टेक एन इंडिविजुअल रॉड लेंथ ऑफ प्राइस मल्टीपल टाइम्स, राइट। सो दैट इज वाई यहाँ पे मैंने इंडेक्स प्लस वन नहीं किया, क्योंकि हो सकता है हमारे हमारे पास 1+1+1+1 वाला पॉसिबिलिटी भी कंसिडर करना है, दैट इज वाई। ठीक है, चलो अब रिकर्जन ट्री वापस से बनाते हैं। हमेशा एक छोटे टेस्ट के लिए रिकर्जन ट्री बना लेना चाहिए, कभी भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है बट समझ में भी उसी से आता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, देन इट विल कॉल फॉर इट्स राइट चाइल्ड। तो 4,3 के लिए क्या होगा कि अगेन द यहाँ पे 4 है, राइट, और यहाँ पे रॉड टू बी कट क्या है 3, क्योंकि ये वन बेस इंडेक्सिंग चल रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे 4 -3 -1, करेक्ट। उससे पहले हम प्राइस ऑफ 3 को उठाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 0 1 2 3, तो 3 पे क्या है यहाँ पे 9 है, राइट। सो आई विल से 9 प्लस f ऑफ 0,3, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे बेस कंडीशन हिट हो जाएगा एंड दिस विल पॉइंट टू 0, और यहाँ से यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा 9, सो दिस विल रिटर्न 9। अब हम यहाँ से एक और इसका राइट ट्री बनाते हैं, तो 4,2 के लिए क्या कॉल हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंडेक्स पे प्राइस क्या अवेलेबल है 8, सो आई विल टेक 8 प्लस फंक्शन ऑफ rod length was 4, तो 4 - 2 - 1 that will give me as 1, right। so 1,2 अगेन बेस कंडीशन हिट हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा हमारे पास मैक्स ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, इट वुड बी 9,8 का मैक्स क्या हो जाएगा 9, तो 9 ही रिटर्न हो गया। अगेन इसके राइट सब ट्री पे चलते हैं 4,1 के, यहाँ पे क्या होगा 1 इंडेक्स का प्राइस क्या है 5, तो सबसे पहले 5 को उठाओ, अब रॉड को कट करो, सो 4 - 1 - 1, so that will give you as 2, and since this is the right branch, that is we will not have to plus the index को increment नहीं करना है, right। 4,2 का 1, चलो अब इस रिकर्जन ट्री को सॉल्व करते हैं, और मीनवाइल अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 2,1 के लिए कॉल किया, तो सबसे पहले इसको किसको कॉल होगा f,2,2 को कॉल होगा, राइट, नॉट टेकिंग पार्ट, जस्ट इंक्रीमेंटिंग द इंडेक्स, और यहाँ पे फिर से बेस कंडीशन हिट हो जाएगी, और ये क्या रिटर्न कर, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब ये राइट को कॉल करेगा और ये क्या करेगा 1 पे जो प्राइस है सबसे पहले क्या है प्राइस 5, तो 5 प्लस फंक्शन ऑफ 2 - 1 - 1, so that will give you as 0। now rod length 0 हो चुकी है, इंडेक्स हमें प्लस नहीं करना है फॉर द राइट पार्ट। again base condition will hit here and it will return 0। now this particular call will return 5, so 5 plus 5 is what 10, so this will return 10 from here। और अब देखो 10 कभी किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आंसर हुआ होगा, देखो 5 + 5 10, राइट। तो जहां से भी जब भी कॉल्स रिटर्न हो रहे हैं वो वहां पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। अब हम इसका राइट कॉल करेंगे अगेन, तो यहाँ पे क्या 0th इंडेक्स था, राइट, 0th इंडेक्स से कॉल हुआ था, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे वैल्यू क्या है प्राइस क्या है 3, सो आई विल से 3 प्लस फंक्शन ऑफ व्हाट रॉड लेंथ क्या यहाँ पे 4, तो 4 - 0 - 1 दैट विल गिव मी एज 3, और इंडेक्स रिमेन्स द सेम, राइट। तो कुल मिला के हमें ये सॉल्व करना है कि फंक्शन ऑफ 3,0 क्या रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, फंक्शन ऑफ 3,0 के लिए कॉल कर लेते हैं एक बार। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इट विल गिव मी अ लेफ्ट कॉल, जहाँ पे क्या होगा इट विल कॉल फॉर फंक्शन ऑफ 3,1, देन इट विल कॉल फॉर फंक्शन ऑफ 3,2, एंड देन इट विल कॉल फॉर फंक्शन ऑफ 3,3। यहाँ पे बेस कंडीशन हिट हो जाएगी और ये क्या करेगा रिटर्न 0, नहीं रिटर्न 0 नहीं करेगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बट वी हैव टू चेक फॉर द राइट चाइल्ड एज वेल। तो 3,2 के लिए जो हम राइट चाइल्ड लेंगे तो इंडेक्स 2 पे कौन सी प्राइस प्रेजेंट है 8, इट विल गिव मी एज 8 ऑफ फंक्शन ऑफ 0,2। देखो यार मैं इतना टाइम स्पेंड करके ये रिकर्शन ट्री आपके लिए इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि वो समझ में आना चाहिए। छोटे टेस्ट के लिए समझ लो, पेन एंड कॉपी उठाओ और साथ में मेरे साथ करो, ठीक है। फंक्शन ऑफ 0,2 यहाँ पे फिर से बेस केस हिट होगी, और यहाँ से दोनों में मैक्स क्या है, एक साइड से 0 है दूसरी साइड से 8, सो इट विल रिटर्न हियर 8, करेक्ट है।
3,1 के लिए वापस से कॉल करेंगे। देखो इंडेक्स 1 पे कौन सी प्राइस है 5, तो 5 प्लस फंक्शन ऑफ व्हाट 3 माइनस 1 माइनस 1, सो दैट विल गिव यू एज 1 1 कॉमा इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड का वी आर टेकिंग दैट पार्ट, राइट। ठीक है, तो अब हमें फंक्शन ऑफ 1 कॉमा 1 कॉल करना है। अगेन यहाँ पे बेस केस हिट होगी और ये हो जाएगा 0 एंड दिस विल रिटर्न 5। सो 8 और 5 में मैक्स क्या है 8, सो इट विल रिटर्न 8, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बचा हमारा इसका राइट कॉल सॉल्व करना, तो इस राइट कॉल को सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन देखो इंडेक्स 0 पे प्राइस क्या है 3, तो इट विल कॉल फॉर फंक्शन ऑफ 3 3 प्लस फंक्शन ऑफ 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2 2 कॉमा 0। ठीक है, तो 2 कॉमा 0 के लिए हमें फिर एक लेफ्ट कॉल बनाना पड़ेगा। यहाँ से एक लेफ्ट कॉल बनेगा। ये क्या किसको कॉल करेगा फंक्शन ऑफ 2 कॉमा 1 एंड दिस विल कॉल फॉर फंक्शन ऑफ 2 कॉमा 2। अगेन इट विल हिट द बेस केस एंड इट विल रिटर्न 0 फ्रॉम हियर, बट दिस अगेन राइट ट्री पे कॉल करेंगे हम। यहाँ पे क्या होगा इंडेक्स 1 पे वैल्यू कौन सी प्रेजेंट है 5, तो 5 प्लस फंक्शन ऑफ व्हाट 2 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 0 कॉमा 1। अगेन ये बेस केस हिट होगा और यहाँ से रिटर्न होगा 5। सो यहाँ से क्या रिटर्न हो गया लेफ्ट चाइल्ड से हमारे पास रिटर्न हो जाएगा 5, राइट। एंड देन अगेन हमारे पास एक और राइट कॉल बची है यार फंक्शन ऑफ 2 कॉमा 0। तो फंक्शन ऑफ 2 कॉमा 0 क्या कॉल करेगा 0 इंडेक्स पे अगेन 3 है, तो 3 प्लस फंक्शन ऑफ 1 कॉमा 0, ये लास्ट कॉल है यार फंक्शन ऑफ 1 कॉमा 0। तुरंत से हम इसे भी एक यहाँ पे एक साइड में आ जाते हैं। 1 कॉमा 0 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ स्पेस नहीं बचा है। 1 कॉमा 0 क्या करेगा सबसे पहले लेफ्ट कॉल में क्या करेगा 1 कॉमा 1 कॉल करेगा। इट विल हिट द बेस केस एंड विल रिटर्न 0। यहाँ पे आ जाएगा 3 ऑफ फंक्शन ऑफ 0 कॉमा 0, करेक्ट है। दिस विल हिट द बेस केस एंड इट विल रिटर्न 3। तो मतलब फंक्शन ऑफ 1 कॉमा 0 इज रिटर्निंग व्हाट 3, करेक्ट है। ठीक है, अब वापस से ट्रैक बैक करते चलते हैं। 3 प्लस 3 6, सो दिस रिटर्न 6। फंक्शन ऑफ 2 कॉमा 0 रिटर्न 6, यहाँ पे 3 एक और प्लस है, सो दिस रिटर्न्स व्हाट 9। मतलब फंक्शन अब यहाँ पे 8 और 9 में बड़ा कौन है 9, तो 9 रिटर्न मतलब 3 कॉमा 0 फाइनली इज पॉइंटिंग टू इक्वल्स टू 9 एंड 9 प्लस 3 is equals to 12 in the right child and in the left child it is 10. What is the maximum of between 10 and 12? So it is 12, right? तो यहाँ पे हमारा रिटर्न होगा 12। दैट वाज अ वेरी हेक्टिक वन, हमने बहुत समय यहाँ पे लगाया, बट ठीक है समझना जरूरी है, राइट। रिकर्जन के एक छोटे टेस्ट केस के लिए रन कर लो, वो समझ में आ जाए तो मेमोराइजेशन और टैबुलेशन, मेमोराइजेशन तो बहुत ही आराम से हो जाएगा और टैबुलेशन के लिए थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये रिकर्जन ट्री आपको हेल्प किया होगा। अब हम इस सूडो कोड को अपने कोड एडिटर पे लिखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एज यू कैन सी कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड योर आउटपुट मैच हो गया, बट हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। वी वर हैविंग द n एलिमेंट्स इन आवर प्राइस एरे और सारे एलिमेंट्स के हमारे पास 2 चॉइसेस थे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी 2 पावर n, राइट। अब हमें n का कंस्ट्रेंट देखना होगा, एक एडिशनल बात मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे n का कंस्ट्रेंट है 10 पावर 3, ठीक है। तो 10 पावर 3 है, इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करो 2 पावर 10 पावर 3 अगर निकालो तो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 10 पावर 8 आता है, राइट। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो हम मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, लाइक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ देखो यू कैन क्लियरली सी कि मैंने 2,1 यहाँ सॉल्व किया और 2,1 यहाँ भी सॉल्व किया, राइट। तो सब प्रॉब्लम्स रिपीट तो हो रहे हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 2 पावर n विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10 पावर 8। तो ये सोल्यूशन तो सबमिट नहीं होने वाला है, लाइक टीएलई आ जाएगी। तो वो एक बार वेरीफाई करते हैं, टीएलई आने का वेट करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। ठीक है, ग्रेट। आउट ऑफ 1115 ओनली 10 केसेस पास हुए यार, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें ऐसा कुछ करना है कि वाई आर यू डूइंग द सब प्रॉब्लम सॉल्विंग अगेन एंड अगेन। उसको किसी चीज में स्टोर करो, उसको स्टोर करो और जब भी उसका यूज आए तो उस स्टोरेज से उसका O(1) में वैल्यू रिट्रीव करके तो अपना काम आगे करो, राइट। तो इसके लिए हमारे पास 2 टेक्निक है टू मेमोराइज दी टू ऑप्टिमाइज द रिकर्शन। वी हैव 2 टेक्निक्स, वन इज मेमोराइजेशन, राइट, एंड सेकेंड इज टैबुलेशन। अगर आपको नहीं पता है कि मेमोराइजेशन टैबुलेशन कैसे वर्क करता है तो मैंने डी प्लेस में सबसे पहले में ही बताया इंट्रोडक्शन में यूजिंग अ फिबोनाची प्रोग्राम। तो उसका वीडियो लिंक अभी ऊपर आ रहा होगा, आप उसको देखो एंड देन प्रोसीड अहेड विद दिस वीडियो। ठीक है, मेमोराइजेशन में भी बहुत सिंपल होता है। मेमोराइजेशन तो लाइक बहुत ही सिंपल है। जो भी हमने कोड लिखा हमें बस डिफाइन करना है कि वो कोड कितने स्टेट्स को यूज कर रहा है। लाइक अब देख पा रहे हो यहाँ पे इंडेक्स +1 और n मतलब 2 स्टेट है, करेक्ट। हम यहाँ पे एक डीपी एरे बनाएंगे, 2D डीपी एरे बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको साइज देंगे n+1 × n+1, ठीक है।
तो मेमोराइजेशन, जब आपने रिकर्जन का कोड लिख लिया, ठीक है, तो उसमें 2-3 स्टेप ही होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि स्टेट्स एनालाइज करो, स्टेट्स एनालाइज करो, ठीक है। उस स्टेट्स एनालाइज करने के बाद डीपी का तुम डायमेंशन डिफाइन करो यूजिंग दिस स्टेट्स, राइट। तीसरा क्या होता है कि व्हेन बिफोर कॉलिंग रिकर्जन, बिफोर calling recursion, check that if that particular check the sub problems have value in DP, ठीक है। और उसके बाद जब फाइनली रिकर्जन कॉल करोगे तो स्टोर इन डीपी। जब भी रिकर्जन कॉल किया तो उसको डीपी में स्टोर करो ताकि ये स्टेप एग्जीक्यूट हो सके। जैसे 2,1 के लिए कॉल किया था तो उसको स्टोर करो ताकि अगली बार जब 2,1 के लिए कॉल हो तो उससे पहले हम चेक कर सके डीपी में वैल्यू प्रेजेंट है नहीं, वहां से है प्रेजेंट, वो 1 में रिट्रीव करके आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं कोड कंप्लीट करता हूँ एंड देन विल रिज्यूम इट। ठीक है, तो कोड कंप्लीट हो गया है, एवरीथिंग रिमेन सेम। मैंने हमें स्टेट्स एनालाइज किया, हमने डीपी एरे बनाया, देन हमें डीपी एरे को इस पैरामीटर में पास भी करना होगा। ठीक है, हमने डीपी एरे पैरामीटर में पास कर दिया एंड देन वी हैव द सेम बेस फंक्शन। और रिकर्जन करने से पहले सेकंड पॉइंट क्या था कि चेक फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट्स हमारे पास आंसर प्रेजेंट है नहीं, राइट। तो इफ इट इज नॉट इक्वल टू -1 जस्ट रिटर्न दैट आंसर, राइट। हमें यहाँ पे सारे स्टेट्स को -1 डिफाइन करना पड़ेगा। -1 से क्यों डिफाइन किया, उस आंसर से अपने सारे को डिफाइन कर दो उस नंबर से जो कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, राइट। तो फॉर दिस केस -1 कभी आंसर नहीं हो सकता है, राइट। अगेन आप इस चीज को समझने के लिए वो वीडियो रेफर करना इंट्रो वाली, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड देन व्हाइल कॉलिंग द रिकर्जन हमें सब कुछ को अपने डीपी में स्टोर करना है, राइट। ताकि फॉर द नेक्स्ट रिकर्जन इफ दैट सब प्रॉब्लम हैज बीन ऑलरेडी बीन सॉल्व दैट कैन बी कॉट बाय दिस लाइन नंबर 41 43 और हम रिकर्जन के अंदर वापस से ना जाए। सो नाउ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैज बीन रिड्यूस्ड टू विच, कितना हुआ, नॉट विट, टू वॉट। तो यहाँ पे हमने डीपी बनाया n+1 इंटू n+1 का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्लियर है, n² हो गई। एंड वी आर नाउ कैलकुलेटिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टेट इंस्टेड फॉर ईच एंड एवरी सब प्रॉब्लम्स, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी O of n², ठीक है। लेट अस हिट द सबमिट बटन एंड सिंस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n² कंस्ट्रेंट एनालिसिस अगर करें हम लोग तो ये 10⁻³ है, सो n² विल बी नथिंग बट 10⁻6 लेस देन 10⁻8। तो डेफिनेटली हमारा कोड सबमिट हो जाएगा और हमारा ये कोड सबमिट हो गया, ग्रेट। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सपेक्टेड जो है O of n है, राइट। तो इसके पास एक और अप्रोच है, दूसरी अप्रोच टैबुलेशन में ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो वो भी देखते हैं एक बार वो कैसे काम कर रहा है। अगेन हम एक छोटा एग्जांपल लेंगे, लेट्स से n = 3 है हमारे पास एंड देन वी हैव द अरे as 3 5 एंड 8, राइट। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि दैट इधर वी मेक अ कट ऑफ 1+, कट में कैसा लगाऊं, 1,1,1 का लगा दूं कट। एसोसिएटेड प्राइस क्या है, 3 है सबके लिए, तो 3 इंटू 3 दैट गिव्स यू एज 9। और मैं क्या कर दूं कि मैं 1 को ले लूं, 1 का एक कट लगाऊं और एक 2 का एक कट लगाऊं, तो 3 + 5 दैट विल गिव यू एज 8। और मैं क्या करूं, मैं एक डायरेक्ट 3 का ही ले लूं और दैट विल गिव यू एज 8। तो अगेन योर मैक्सिमम आंसर वुड बी 9, राइट। तो हम इसके लिए कैसे कर सकते हैं, हम इसके लिए एक वैल्यू या फिर एक डीपी एरे बनाएंगे ऑफ n+1। तो हम यहाँ पे 0 1 2 3 4, राइट। और डीपी ऑफ 0 तो 0 का, क्योंकि इसके लिए कोई जैसे 3 का कट लगाए तो दूसरा कट ऑब्वियसली 0 का लगाना पड़ेगा और उसके लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सोचो, तुम खुद सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट्स से ये जब 1 का कट लगाया, ठीक है, ये से ये 2 का जब कट लगाया था हमने, तो इसको यहाँ पे तो इसको स्टोर कर लेते हैं ना उससे अच्छा। दैट इज कि हमने यहाँ पे क्या किया, 3 + 3 + 3, तो इस 6 को स्टोर कर लो कहीं, ताकि अगली बार जब हमें 2 का कट लगाना हो तो डायरेक्ट हम डीपी ऑफ 2 से उसका आंसर उठा लें। ठीक है, चलो ड्राई रन करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फॉर i = 1, पहले मैं इसका आपको कोड दिखाता हूँ एंड देन वी विल डू द ड्राई रन एंड देन इंट्यूशन तो आपको समझ में आ गई होगी, हमें एक ड्राई रन करने के पास एक जरूरत है एंड देन यू विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो इसका ड्राई रन देखते हैं तुरंत से यार। तो ये रहा इसका कोड। तो फॉर i = 1 क्या होगा देखते हैं। फॉर i = 1 what will happen that we will initializing a variable that let's say max which is pointing to as of now -infinity and then we have a jth loop that is coming from 0 to i। तो j = 0 के लिए बस ये रन करेगा। सिमिलरली जब i = 2 होगा तो j किस के लिए रन करेगा, j = 0 के लिए रन होगा, j = 1 के लिए होगा। सिमिलरली जब i = 3 होगा, करेक्ट,
जब i इक्वल्स टू 3 होगा तो j किसके लिए रन करेगा, j 0 के लिए रन करेगा, 1 के लिए रन करेगा एंड 2 के लिए रन करेगा। सही बात है, ठीक है। ठीक है, तो j इक्वल्स टू 0 के लिए जब रन हुआ तो हमें कंपैरिजन कराना है कि मैक्स को हमें अपडेट करना है किससे, मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा व्हाट प्राइस ऑफ जे पे देखो प्राइस क्या है, 0 पे 3 है प्राइस, राइट। तो 3 प्लस वैल्यू ऑफ, देखो अब अगर हमने जे आई इक्वल्स टू 1 था और हमने 1 के लिए अगर ये ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, हम सिर्फ अभी 1 की लेंथ लगा रहे हैं, आई इक्वल्स टू 1 का मतलब है लेंथ 1 रॉड के लिए कंसिडर कर रहे हैं, दिस लेंथ 2 रॉड के लिए एंड लेंथ 3 रॉड के लिए पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। तो अगर सिर्फ 1 का कंसिडर कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हमने इस प्राइस को इंक्लूड कर लिया 3 को, तो अगला जो कट होगा वो 0 का ही होगा। बट हम उसको लिखे कैसे, वी कैन जस्ट मेक इट, रॉड लेंथ का क्या है 3 माइनस क्या कर रहे हैं जे, और एक और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट विल गिव यू एज 0। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि दैट वी आर मेकिंग अ कट ऑफ लेंथ 1 जहां पे हमने फर्स्ट रॉड की प्राइस को ही कंसिडर कर लिया और दूसरा कट करने के लिए क्या बचा 0, तो उसकी वैल्यू डीपी ऑफ 0 से वहां पे वैल्यू उठा लेंगे हम, राइट। तो ये डीपी, तो डीपी ऑफ 0 दिस विल इवेंचुअली बी इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे अपडेट हो जाएगा 3। नेक्स्ट इटरेशन देखते हैं, बातें और क्लियर हो जाएंगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी लेंथ ऑफ द रॉड 2, मतलब हमारे पास n इक्वल्स टू 2 दे रखा है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द केस हमारे पास 3 एंड 5 है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, या तो 1 प्लस 1 ले लें, राइट, या तो 2 प्लस 0 ले लें। 1 प्लस 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, 2 प्लस 0 लेंगे तो क्या हमारे पास 5, तो यहाँ पे मैक्स क्या होगा 8। एंड दैट इज वाई ये सिर्फ देखो 2 बार ही इटरेट हो रहा है। अभी मैक्सिमम का कंपेरिजन का कोड लिखेंगे, ड्राइन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैक्सिमम ऑफ, सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी होगा, सो आई विल कंपेयर माइनस इन्फिनिटी कॉमा, मैं क्या करूंगा सबसे पहले j इक्वल टू 0 सो दैट वी आर मेकिंग द फर्स्ट कट, और फर्स्ट कट की 0th इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस, अब मैंने क्या लिया, मैंने फर्स्ट इंडेक्स उठाया, तो डेफिनेटली मैं दूसरे इंडेक्स उठाने के लिए मैं कहाँ से वैल्यू उठाऊं, डीपी ऑफ 1 से उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ये इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने स्टोर कर रखी है, करेक्ट। ठीक है, तो इट विल कॉल फॉर डीपी ऑफ नथिंग बट 2 माइनस 0 माइनस 1 विच विल डीपी ऑफ 1, राइट। So 3 plus 3 will give you a 6 और 6 यहाँ अपडेट हो जाएगा। This is nothing but that we are talking about the possibility that we are cutting the length of rod 2 into 1 and 1 pieces। ठीक है, अब आते हैं वापस से, एक और भी तो कंपैरिजन है जहाँ पे 2 डायरेक्ट 2 पीस में कट कर दो, 2 लेंथ में कट कर दो, राइट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अगेन 6 से कंपैरिजन करो एंड देन वी हैव j इक्वल्स 1, j इक्वल्स 1 पे देखो वैल्यू क्या प्रेजेंट है 5 5। अगर हमने 2 लेंथ ऑफ 2 का कट पहले ही लगा दिया है तो देखो डीपी कैसे अपडेट हो रहा है, डीपी किसको कॉल करेगा, कॉल करेगा 2 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज डीपी ऑफ 0, दैट विल गिव यू अ डीपी ऑफ 0 का आंसर ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 6 प्लस 5 में कॉम व्हाट टू से 6 प्लस 6 में बड़ा कौन है 6,5 में 6 बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन 6, और यहाँ पे 8 नहीं होगा यार, यहाँ पे 8 कैसे लिख दिया मैंने, प्राइस क्या है 3 है, तो हमने 2 बार कट किया है इनटू लेंथ ऑफ 1, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6 होगा, राइट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, चलो तुरंत से इसका देख लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से कंपेयर, हाँ अब नहीं, अब सबसे अच्छा तरीका यह है कि यहाँ पे पॉज करो और ये 3 इटरेशंस खुद से करो एंड कम बैक टू माई वीडियो अगेन, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी, ओके, so we have now minus infinity, it is compared with the 0 का प्राइस क्या है 3, मैंने अब 1 कट लगा, ये 3 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे dp ऑफ 2 से हमारी वैल्यू उठनी चाहिए, dp ऑफ व्हाट टू से 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज dp ऑफ 2, dp ऑफ 2 में वैल्यू अपडेट हो रखा था 6, करेक्ट है। तो ठीक है 6 प्लस 3 दैट विल गिव यू एज 9, अगेन यहाँ पे मैक्स से अपडेट होगा 9 कॉमा dp ऑफ 1 दैट इज 5 प्लस dp ऑफ 2, करेक्ट है। dp ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 6, नहीं dp ऑफ 1 हो गया, राइट, 3 माइनस 2 विच विल गिव यू एज 1, तो dp ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3, सो 9 कॉमा 5 प्लस 3 8, बट अगेन मैक्सिमम क्या है 9, तो 9 से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, j इक्वल टू 2, यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 8, और हम किसको उठाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीवियस वैल्यू वाज 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस dp ऑफ 0, करेक्ट है, और यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी अगेन 9, dp ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो अगेन 9, और इसी कारण हमारा आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 9 आ रहा था, राइट। कहाँ गया वो ट्रेन, हाँ यहाँ आ गया, देखो 9 आ रहा था, इसके लिए हमने सारे पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर ली थी, ठीक है ग्रेट। चलो वापस इसको कोड पे चलते हैं, प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू कोड इट योरसेल्फ, और हम फिर रिज्यूम करते हैं।
ठीक है, तो टैबुलेशन का भी अप्रोच हो गया। एंड व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन, हम सिंस वी आर रनिंग टू नेस्टेड फॉर लूप, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बट वी हैव ऑप्टिमाइज्ड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इनटू ओ ऑफ एन। ठीक है, तो ये भी हो गया। एंड आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी अप्रोच। वापस एक बार समरी डिसाइड कर लेते हैं। समरी हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमने रिकर्जन अप्रोच देखी और हमने देखा उसमें 2 पावर एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रहा था। देन वी हैव स्टडीड कि इसके दो ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, दैट इज यूजिंग वन मेमोराइजेशन एंड टैबुलेशन, दैट इज हाउ वी कैन हैंडल दिस सब प्रॉब्लम्स। मेमोराइजेशन में देखा हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी, ओ ऑफ एन स्क्वायर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाज आल्सो ओ ऑफ एन स्क्वायर। बट इन टैबुलेशन इन द बॉटम अप मैनर हमने क्या देखा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, बट वी हैव reduced our space complexity even further, that is in O of n। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। फ्यू लास्ट थिंग दैट मैंने सी प्लस का कोड नहीं दिखाया यार, वो दिखा देते हैं एक बार फिर इसको एंड। ओके, सो दैट्स द सी प्लस प्लस कोड फॉर द टैबुलेशन अप्रोच एज वेल। सेम थिंग है यार, हमने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।